नमस्कार हर्ष जी। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं? बस बढ़िया बढ़िया, आप बताएं कैसे हैं? हाँ, बहुत अच्छा है, नो प्रॉब्लम। ओके। कोरोना तो अभी भी चल ही रहा है। हाँ जी, ये तो अब वी हैव टू स्टार्ट लिविंग विद इट, क्या कर सकते हैं। या लाइफ का स्टाइल चेंज हो गया बिल्कुल। हाँ, लाइफ का स्टाइल एकदम चेंज हो गया एंड वी डू नॉट नो व्हाट वे इट विल कंटिन्यू, हम्म। whether we any improvement will be there or we'll be limping like this only. या यू नेवर नो, Yeah. थोड़ा वैक्सीन आ जाएगा उससे थोड़ा फर्क पड़ेगा, बट यू नेवर नो, द वायरस कैन म्यूटेट। Yeah, it can take some other shape. हाँ। तो क्या कर रहे हैं आजकल फिर, जैसे अभी बाहर जाते हैं बिल्कुल कि नहीं, बंद कर दिया? Actually, we have in this society 3 buildings अच्छा। of 12 floors each. So, and then there is a boundary all around with closed gates, 2 gates in and out. ठीक। So both the gates have been kept locked, and people go out only with a specific permission of if it is any medical reason, हाँ हाँ। and no other reason they are allowed to go out. अच्छा And we get everything, like vegetables and other grocery items, everything we are getting home delivery. अच्छा। So like that it is going on. And fortunately, in this area, this is, there are so many buildings around which are already infected by this corona. अच्छा। And our building is somehow escaped. ठीक So है। they want to preserve it. ये चल या रहा है। हर्ष जी, ये पिछले उसमें that Ujjayi and all that we were doing. हाँ जी। Now you want to switch over to Raj Yoga, something you have mentioned हाँ जी। today. So उसमें जो वो कुंडली वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल जीरो है। आई एम नॉट क्लियर क्या व्हाट इज दैट कुंडली, हाउ? वो इसीलिए वो एक्चुअली इस पार्ट ऑफ राज होगा। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ओके तो इसीलिए उधर जा रहे थे कि आज वो कुंडलिनी वगैरह की बात करेंगे। ओके ओके ओके। तो अच्छा, यू विल then गेट एन another thing आइडिया। is with respect to that हाँ या मतलब इट विल स्टार्ट कनेक्टिंग सम डॉट्स आल्सो, सो या यू विल गेट सम आइडिया कि भाई उसमें क्या है, क्योंकि सम पीपल फॉलो दैट पाथ आल्सो। पार्शियली तो हम लोग फॉलो कर ही सकते हैं, अगर पूरी तरह नहीं करते तो। या And another thing is this with respect to Ujjayi, Ekadasi Ujjayi. Now, that breathing, inhalation and exhalation. So while inhaling, you are able to have that sound which is through the choked, you know, we are able to get that. But while exhaling, the sound does not come. आप कोशिश करें कि थ्रोट के नीचे इधर से ना करें, तो तालू के ऊपर होता है ना, वहां से करें, अच्छा अच्छा अच्छा, तो उससे दोनों तरफ से आ जाएगी आवाज। okay. And then another thing is I have seen on some YouTube पे जो है दिया हुआ है उज्जैन के बारे में, उसमें जो है once only, that is only inhalation time only sound is there. Excellent times they talk about that विलोम वगैरह जो है ना उस तरह का करते हैं वो exhale like that. तो वो So many variety. different techniques are there, but this one is a different technique. It will not Okay. be 100% of what they are doing. Yeah. It is different. Because रामदेव का कुछ उसमें था, then I found that Excel time में जो है they were using that लोम technique. अनुलोम विलोम आज उसका भी डिस्कशन में लाएंगे, अनुलोम विलोम को। Okay. You get some idea about what it does. Okay. But it's a very good exercise actually, अनुलोम विलोम बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज। वो भी थोड़ा आज कवर करेंगे ना। हाँ,
ओके। क्या हुआ बाकी लोगों को? आया नहीं कोई? क्या हमसे बोर हो गया सब लोग? नहीं बोर नहीं हुए हैं, ऐसा नहीं है यार। I mean many people are taking a lot of interest. Makrand is he was telling no, he will be on the way going somewhere. कह रहा था ना वो तो ट्रैवल कर रहा होगा. Yeah. So he will not be available. Other people should be there. दिवाकर आता है, गोयल आता है, these people come. ट्रैवलिंग के कारण उसका हो सकता है प्रॉब्लम हो रहा हो कुछ. फोटो नहीं आया है ना? मदन आया. अच्छा मदन है. बालकृष्णा. अच्छा बालकृष्णा आफ्टर लॉन्ग टाइम. हाँ. क्या बात है भाई मकरंद. लगता है आप गाड़ी में हो. वॉइस इज नॉट कमिंग. मकरंद आपकी आवाज नहीं आ रही. He should be comfortable unless he should not take risk. No, he probably is not driving himself. अच्छा. He is sitting on the back seat, I think. नमस्कार गोयल साहब. हाँ सर नमस्कार. नमस्कार. अरे दिवाकर आ गया. दिवाकर जी नमस्कार. नमस्कार जी. नमस्कार. गुड. बढ़िया. बालकृष्ण को भी बहुत दिनों के बाद देखा भाई. अच्छा बालकृष्ण भी है. हाँ. बालकृष्ण दिख नहीं रहा अभी. I'm not able to see. अभी मुझे दिख रहा है तो आपको भी दिखेगा. मकरंद आपका ऑडियो अभी कनेक्ट हो गया? अभी भी अभी नहीं है. हेलो. हाँ अभी ठीक है. नमस्कार. गुड. आप क्लियर है? हाँ मैंने पहली बार एक्चुअली फोन से ज्वाइन किया है. अच्छा. हाँ. As I told you, I'm traveling. I'm in the car. Yeah. I hope you are not driving. You are not driving, I hope. No, I'm not driving. That's good. That is okay. My son-in-law is driving. अच्छा. Okay. हाँ. चलिए बढ़िया है. बहुत अच्छा आ रहा है. बस साफ आ रहा है. हाँ अभी तो काफी साफ आ रहा है. बालकृष्ण आप भी कुछ कहिए तो आवाज पता लगे आपकी आ रही है. हाँ. बालकृष्ण आज आए. हाँ. क्या मगर चुप नहीं, हमारी आवाज पहुंच रही है उन तक कि नहीं? नहीं कोई हरकत नहीं है. और कौन कौन है? गोयल है, प्रभात है. प्रभात. And I am there. I can see you. दिवाकर को भी हो. हाँ. आइए मकरंद. हेलो. बढ़िया. चलिए साहब और बताइए क्या चल रहा है? हेलो दिवाकर. हाँ बालकृष्ण की आवाज आई. आई मेरी आवाज? अब आई. थैंक गॉड. गुड आफ्टर लॉन्ग टाइम. बालकृष्ण फ्रीज हो रहे हैं बार. हाँ. चलिए कोई बात नहीं, अभी शुरू हो जाएगा. या शुरू करें? बिल्कुल. बताइए क्या शुरू करें आज? आज तो तुमने टॉपिक ले रखा है राजयोग. हाँ चलिए. ऐसा है कि वो हमें कॉमनली तो हमको 3 योगा मालूम ही है ना, भक्ति, ज्ञान, कर्म. तो एक चौथी ब्रांच है राज योगा की. चौथी ब्रांच है वो ज्यादा, उसका पार्ट ऑफ इट इज वेरी पॉपुलर, पार्ट ऑफ इट इज नॉट वेरी पॉपुलर.
Part of it is known and part of it is not very widely known. Not only very widely, but not many people know about it. तुम ये कह रहे हो कि ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग के बाद फोर्थ there is a fourth path which is called राज योगा. मतलब राज योगा एक टर्म यूज कर ली गई है उसके लिए, but it was also known as लय योगा. अगर आप उसको सर्च करेंगे तो अपने वेदों में भी आपको उसका जिक्र मिलेगा. जैसे हठ योग वगैरह भी हो जाता है. This is all part of that. हठ योग इसका पार्ट है राजयोग का. अब इसका मतलब इस जैसे एक पूरा एक कैटेगरी है ना, ये जो उसके डिफरेंट ब्रांचेस हैं. तो हठ योगा इज ए ब्रांच ऑफ राजयोग. मतलब यू कैन कॉल इट राजयोगा. राजयोगा नाम जो है वो भी अबाउट 1000 ईयर्स अगो ही दिया गया उसको. तो एक कैटेगरी है which category is related with the prana, the manipulation and control of prana. तो उस कैटेगरी के अंदर ये सारे आ जाते हैं. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जो फिजिकल योगा जो आजकल आप देख रहे हैं, योगा सेंटर बने हुए हैं, रामदेव भी योगा सिखा रहे हैं और बड़े सारे डिफरेंट टाइप के योगा चले हुए हैं आजकल. तो दे आर ऑल पार्ट ऑफ दिस कैटेगरी, all the different branches of this category. तो ये जैसे चार ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और राजयोग, इसके फिफ्थ भी कोई है या ये राजयोग में बाकी सब कुछ है? एक्चुअली ये जो राजयोगा भी, अगर राजयोगा नहीं कहना चाहिए उसको, प्राणायोगा कहना चाहिए एक्चुअली उसको. मेरे हिसाब से तो उसमें उसके अंदर डिफरेंट ब्रांचिंग हो जाती है, बट दिस बेसिकली कवर्स मोस्ट ऑफ इट. तो जो फोर्थ कैटेगरी है इट इज, अच्छा आपने वो सुना होगा ना पंचकोश विवेक? नाम तो सुना है बट कभी और बर्दर ध्यान नहीं दिया. अच्छा, तो पंचकोश को मैं, वो जो अन्नमय कोश और ज्ञानमय कोश. एग्जैक्टली. ऐसा है कि जो हमारी जो बीइंग है, जिसको हम बीइंग, मी एज ए टोटलिटी, वो एक बड़ी इंटीग्रेटेड बीइंग है. उसके अंदर फिजिकल भी है, उसके अंदर प्राणा भी है, उसके अंदर मन भी है, उसके अंदर बुद्धि भी है, उसके अंदर चित्त भी है जहाँ इंप्रेशंस और वासना रहती हैं. तो ये सारा एक इंटीग्रेशन है एक. तो जो भी हम जो एज एन इंडिविजुअल जब मैं अपने आप को प्रेजेंट करता हूँ या अपने आप को सोचता हूँ, तो एक इंटीग्रेटेड बीइंग है ये. तो जो पंचकोश विवेक था उसने इस इंटीग्रेशन को इन 5 डिफरेंट लेयर्स में एक्सप्लेन किया. तो आउटवर्ड लेयर जो मोस्ट आउटवर्ड लेयर जो है उसको फिजिकल बॉडी कहते हैं. एंड फिजिकल बॉडी जो है उसकी वो अन्न से आपकी चलती है. तो पहला जो उसकी जो लेयर, जैसे ऑनियन की लेयर्स होती है ना, एक लेयर को उतारो फिर दूसरी निकलती है, दूसरी से तीसरी. तो जो सबसे आउटवर्ड लेयर है उसको हम अन्नमाया कोश बोलते हैं. शरीर, स्थूल शरीर से संबंध है उसका मतलब ये कि अन्न से वो शरीर जो है वो चलता है और खत्म होने के बाद में इफ यू जस्ट लीव इट बिकम्स अन्न आल्सो, डस्ट में चला जाता है वो. मैं अन्नी खाता हूँ, मैं अन्न में ही मिल जाता हूँ. हाँ, तो बॉडी है. तो इसको उन्होंने बोला कि फर्स्ट ग्रॉसेस्ट जो आउटवर्ड मोस्ट आउटवर्ड लेयर अन्नमाया कोश. कोश कहते हैं लेयर को, कोशास कहते हैं ना जैसे हम, तो उसको इंग्लिश में हम उसको लेयर कह देते हैं. एक्चुअली एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है बट इट इज ए गुड वे ऑफ एक्सप्लेन. द सेकंड लेयर और उसके अंदर जैसे प्याज को छीला तो नेक्स्ट लेयर जो आई उसको बोलते हैं प्राणमाया कोश.
तो जो हमारी जो शास्त्रों में जो प्राण माया कोश था, उसको उन्होंने प्राणा का फ्लो जो था बॉडी के अंदर उससे रिलेट किया। तो उन्होंने उसको 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राणास में डिवाइड किया कि भाई डाइजेशन हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, ये सारी चीजें। तो उन्होंने कहा कि ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राण है। But the flow of prana, and which I may or may not really go into it too much, but मैं आपको थोड़ा और एग्जांपल दिखाऊंगा कि जो फ्लो ऑफ प्राणा है बॉडी में, जो उस बॉडी को मेंटेन करता है। तो उन्होंने जो सेकंड लेयर बोली वो बोली प्राण माया कोश की, ठीक है। तो थर्ड लेयर जो बोली वो उसको बोला गया मनोमाया कोश, जो हमारा मन है। कौन सा मन को कहते हैं हम लोग की, मन की डेफिनेशन दे देते हैं कि उसकी दिस इज द सीट ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस। मतलब जो थॉट्स एंड इमोशंस जो उसमें मैनिफेस्ट होते हैं, जो प्रोजेक्ट होते हैं मन से, वो मन है। तो मन में कोश, मनोमाया कोश। तो नेक्स्ट आया उसके विज्ञान माया कोश। आओ प्रभात। गुड मॉर्निंग, सॉरी आई एम लेट। तो नेक्स्ट आया उसमें विज्ञान माया कोश, उसको बोलते हैं बुद्धि। तो अब मन से ज्यादा सटल होती है बुद्धि, तो उसको बोला गया कि उसको विज्ञान माया कोश का नाम दिया गया। और उसके बाद में एक लेयर को बोला गया आनंद माया कोश। ये जो आनंद माया कोश है, इसकी डेफिनेशन के अंदर थोड़ा सा सटल डिफरेंस है बिटवीन मैनी पीपल हु ट्राई टू डिफाइन। इसका नाम उन्होंने आनंद माया कोश इसलिए दिया कि भाई वहां उस लेयर के ऊपर आनंद ही आनंद है। बट रियलिटी में जो उसका जो रियल मीनिंग होना चाहिए वो ये है कि आनंद माया कोश इज योर लेयर ऑफ इम्प्रेशंस, is the layer of impressions, and when you are projecting from that point, you are in the state of total ignorance, because impressions are nothing but ignorance. Lack of knowledge is impression. तो उस स्टेट के अंदर it should be equated to something like a deep sleep. उसमें आनंद तो बहुत है डीप स्लीप में, बट यू आर नॉट इवन अवेयर ऑफ दैट डीप स्लीप आनंद। तो जो और उसके बाद जो एक लेयर बनी, जो उसके बाद जो अगर हम उससे बाद निकल जाते हैं, अंदर और चले जाते हैं सटल में, दैट्स व्हाट वी कॉल आत्मा। ठीक है। तो जो 5 कोश हुए वो हुए आपके अन्नमाया कोश, प्राणमाया कोश, मनोमाया कोश, विज्ञान माया कोश, आनंद माया कोश। और इन 5 के बाहर अंदर उसके समझ लीजिए वही आत्मा। तो जो आत्मा है एक वो लाइट की तरह है, और उसके चारों तरफ उसके अगर आप एक उसके चारों तरफ एक कोश बना दें, तो जब आत्मा प्रोजेक्ट करती है वो सब लेयर्स से के थ्रू प्रोजेक्ट करती है, तो उससे हमारा इंडिविजुअल बनता है। मैं एज एन ईगो, मैं एज हर्ष, मैं एज दिस बॉडी। वो जो मैं की जो फीलिंग आती है वो उस प्रोजेक्शन की वजह से आती है, क्योंकि वो प्रोजेक्शन उस सारी लेयर्स के अंदर से निकलता हुआ आ रहा है। और इसीलिए हर आदमी डिफरेंट है, क्योंकि हर आदमी की जो लेयर है उसका जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट है, तो उसकी इंडिविजुअलिटी आ जाती है। तो इंडिविजुअलिटी क्योंकि जैसे हर आदमी की जो लेयर ऑफ इम्प्रेशंस है वो डिफरेंट है, तो पहला तो वहीं से उसका एक सेपरेट इंडिविजुअलिटी बन जाएगी। और उसके बाद में जितने बाकी की लेयर्स हैं, विज्ञान हुआ, मन हुआ, प्राण हुआ और अन्नमाया शरीर हुआ, तो सारी लेयर्स डिफरेंट होने की वजह से एक टोटल इंडिविजुअल बन जाता है, जो सेपरेट डिफरेंट हो जाता है, यूनिक।
और उस यूनिकनेस की वजह से हमारे सारे एक्सपीरियंसेस भी यूनिक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो पंचकोश विवेक था, वो एक सिंप्लीफिकेशन था। हम लोगों का जो हम लोग साइंटिफिक एनालिसिस जो करने का जो तरीका होता है ना, उसका प्रिंसिपल होता है कि हम वी नीड टू ब्रेक थिंग्स डाउन इनटू स्मॉलेस्ट पीसेस, देन वी अंडरस्टैंड दैट। दैट्स द वे ऑफ साइंटिफिक एनालिसिस। कोई भी चीज को हम उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसको छोटे से छोटे पीस में ले जाते हैं, तो देन वी से हाँ, नाउ वी कैन अंडरस्टैंड इट। But the spiritual is not a breakdown, but it's a totality. So science, while science goes to break it down into different small pieces, the spiritualist wants to make it whole. So this is a kind of a द्वंद्व जिसको बोलना चाहिए, between the brain and the spiritual experience. So the brain is always, or mind is always wanting to break it down, but the spiritual experience is wanting to experience it as a whole. So anyway, so coming back to this पंचकोश विवेक, तो पंचकोश विवेक के अंदर जो सेकंड लेयर थी, जो प्राणमाया कोश जो था, उसको उन्होंने अभी तक जितना शास्त्रों के अंदर था, उन्होंने उसको लिमिट किया था कि बॉडी के अंदर जो प्राण चलता है उसी के ऊपर। बट दिस प्राण का जो एक सिस्टम है, सम पीपल रियलाइज्ड कि इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू बॉडी, इट इज मच बिगर देन। started analyzing कि प्राणा का फ्लो कैसे होता है, ठीक है, बॉडी के अंदर जो जिसको कहते हैं मेरिडियंस या उसकी वो नाड़ी, तो ये प्राणा इज कनेक्टेड विद योर एस्ट्रल बॉडी और एनर्जी बॉडी. इट्स लाइक सम काइंड ऑफ एनर्जी बॉडी. इट्स नॉट द फिजिकल बॉडी. द प्राणा की जो नाड़ी है, जो मेरिडियंस है, दे आर इन योर एनर्जी बॉडी. So there is an energy body within this physical body. So then they realize कि प्राणा जो है, if it can flow unobstructed in a clean state through the nadis, it actually expands and connects your energy body to the totality. So based on that concept, they devised this whole system of manipulating and controlling prana. That concept, please repeat again. Concept it for me. देखिए, आपकी एक energy body है. Yeah. So as long as it is an individual body, that means it has a boundary. जैसे हमारी physical body की एक boundary है. बाउंड्री है ना, हमारी स्किन के बाहर तो फिजिकल बॉडी नहीं है. इसी तरह से एनर्जी बॉडी, एज लॉन्ग एज इट इज इंडिविजुअल एनर्जी बॉडी, इट हैज ए बाउंड्री. दैट इंडिविजुअल एनर्जी बॉडी कैन आल्सो बी कॉल्ड द इंडिविजुअल सोल. इट हैज ए बाउंड्री. इट्स एक्सपीरियंस इज लिमिटेड टू विद इन दैट बाउंड्री. जो भी उसका कंपोजिशन है, उसका जो भी कंस्ट्रक्शन है, उसका एक्सपीरियंस उस बाउंड्री के अंदर ही. जैसे अगर मेरा कोई भी एक्सपीरियंस मन से होता है, तो वो मैं अपने मन का एक्सपीरियंस करता हूँ. बाहर का तो मैं उसको रिएक्ट करता हूँ उसके ऊपर. मेरी बाउंड्री है वो, मेरा मन मेरी बाउंड्री है. एनर्जी बॉडी की जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री को ब्रेक किया जा सकता है. और जब वो ब्रेक हो जाती है, तो देन इट कैन मर्ज विद द टोटल एनर्जी. एंड टोटल एनर्जी इज व्हाट? दैट इज वेयर यू स्टार्ट फाइंडिंग द स्पिरिचुअल रेल्म. दैट इज वेयर यू स्टार्ट फाइंडिंग कि
आप एक टोटलिटी के साथ में मर्ज कर सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आपने देखा होगा या सुना होगा, कुछ गुरु ऐसे होते हैं जो आपको हजारों मील दूर से आपके बारे में जान जाते हैं कि आपको क्या हो रहा है, आपकी क्या जरूरत है। तो क्या हुआ कि उन्होंने आपकी एनर्जी बॉडी के साथ में कनेक्ट किया और उन्हें समझ आ गया कि भाई ये इसको क्या चाहिए, ये क्या कर रहा है, इसको क्या प्रॉब्लम है। वो उसको एनर्जी बॉडी को कनेक्ट करके वो हो जाता। अब उनका ये जो एक्सपेंशन हुआ है, आप एज ए इंडिविजुअल, मेरा तो एक्सपेंशन नहीं हुआ, बट जो गुरु था उसने अपनी एनर्जी बॉडी को इतना एक्सपेंड कर लिया कि वो मेरी एनर्जी बॉडी के कनेक्शन में आ गया, कांटेक्ट में आ गया। सो that connection, that expansion of energy body and the expansion of awareness, this is also expansion of awareness. जितना आपकी बॉडी, एनर्जी बॉडी जो एक्सपैंड करती है, उतनी आपकी अवेयरनेस जो है वो एक्सपैंड करती है उसके साथ साथ, ठीक है ना। तो जब वो जो एक्सपेंशन ऑफ अवेयरनेस है, that occurs when we follow any of the spiritual paths. तो कोई जो बहुत भक्त होते हैं, जो भक्ति योग में हैं, वो भी आपके दिल की बात जान लेते हैं। जो बहुत ज्ञान योगी हैं वो भी समझ जाते हैं। आपको ऐसे बहुत सारे गुरु और बहुत सारे शास्त्रों के अंदर ऐसे लोग मिलेंगे जो किसी भी पाथ में हो, बट दे सीम टू नो मच मोर देन एनीबडी एल्स, समहाउ दे नो। तो व्हाट हैपेंस इज कि जो ये एनर्जी बॉडी का जो एक्सपेंशन है, इट अकर्स if you follow any path sincerely, ठीक है। So what these very wise people, they said that okay, if the energy body is expanding, why don't we create a full system in which instead of going for bhakti and karma and this and that, we just focus on the energy body itself. हम सिर्फ प्राणों के ऊपर ही फोकस करें, और अगर हम प्राण के ऊपर फोकस करके उसी की मैनिपुलेशन और उसी का कंट्रोल करें और उसी को हम उसको अच्छा मैनेज करें, तो जो रियलाइजेशन आपको भक्ति योग से या कर्म योग से या ज्ञान योग से हो रहा है, वही रियलाइजेशन हमको इससे भी हो जाएगा। So then they started creating this whole system of manipulating prana. ठीक है। तो some of those things we are able to see, जैसे अभी फिजिकल योगा है, जैसे रामदेव योगा कराते हैं, बोलते हैं कि आप ये वाला आसन करेंगे आपको ये बीमारी दूर हो जाएगी। Let me go back to this Panchkosh one more time. Sorry Prabhat, I think you were saying something. हाँ, एक क्वेश्चन ये था कि ये जो एनर्जी की बात कर रहे हो, हाँ जी, is this the energy of the universe that you are connecting to? okay. Energy of the universe can be in two categories. One is the physical energy, other is the spiritual energy. Spiritual energy, that's what I meant. So I am talking about the spiritual energy. Right. तो देखिए पंचकोश विवेक में अभी जो हमने बात की थी, उसमें जो लेयर्स हैं उसके एक सीक्वेंस में ही हम बोलते हैं उसको, जैसे अन्नमाया कोश, प्राणमाया कोश, मनोमाया कोश, विज्ञान माया कोश, आनंद माया कोश। Each inner layer has a power over the outer layer. तो देखिए जो अन्नमाया कोश है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं प्राणमाया कोश से, प्राणा से। अगर आपका प्राणा का फ्लो ठीक नहीं है तो जो बॉडी है वो सिक हो जाती है, अनवेल हो जाती है।
जो प्राण है हमारे, उनका जो फ्लो है वो अफेक्ट होता है हमारे मन की कंडीशन से। अगर हमारा मन उदास है तो हमारा शरीर के अंदर प्राण ठीक नहीं चलते हैं और उसकी वजह से बॉडी फिर से खराब हो जाती है। और ये हमने देखा होगा, जब मन हमारा खराब होता है तो हमारे को भूख नहीं लगती, खाना खाने का दिल नहीं करता, शरीर टूटा टूटा हो जाता है। उसके बाद उससे ज्यादा सटल होता है विज्ञान माया कोश, बुद्धि। बुद्धि जो है हमारे मन को कंट्रोल करती है। ये बात अलग है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग बुद्धि को सिर्फ मन को जस्टिफाई करने के लिए कर देते हैं, बट इन रियल सेंस जो बुद्धि की जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ यही है कि वो अपने मन को कंट्रोल कर सके। मन हमारा करता है कुछ ये काम करने का, वो चीज करने का, और बुद्धि हमें इमीडिएटली बताती है कि ये ठीक है या नहीं है, ये हमारे लिए अच्छा है या नहीं है। डायबिटीज के लिए जिसको परेशानी है उसको शुगर खाने का दिल तो करता है, बट बुद्धि उसे बोलती है कि नहीं खा, क्योंकि ये तेरे लिए अच्छा नहीं है। तो जो बुद्धि है वो मन को कंट्रोल कर सकती है, और फिर मन प्राण को करता है, प्राण शरीर को करता है, और बुद्धि को कंट्रोल करने वाला होता है चित्त, जिसके अंदर हमारे सारे इंप्रेशंस हैं। अगर हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, जो हमारा वैल्यू सिस्टम है, वो सारे उन इंप्रेशन से जनरेट होता है। तो अगर हमारा बिलीफ सिस्टम जो है वो एक पर्टिकुलर टाइप का है, एक पर्टिकुलर टाइप की हमारी बिलीफ है, तो हमारी बुद्धि उसी बिलीफ को जस्टिफाई करती है। हमारी बुद्धि फिर उससे अलग जाने की कोशिश नहीं करती। हमें बुद्धि कहती है नहीं, यही हमने सीखा है, यही हमें समझा है, यही ठीक है, और इसी की बेसिस पे क्या अच्छा और क्या बुरा डिसाइड करती है। तो हर लेयर जो सटल लेयर है वो ग्रॉसर लेयर से ज्यादा पावरफुल होती है। ठीक है, कमिंग बैक टू द प्राणा, तो हमने इंडिविजुअल लेयर, जैसे हम लोग इंडिविजुअल की बात करते हैं पर्सनल लेयर के ऊपर, कोश में प्राणा सेकंड नंबर पे आता है। बट प्राणा की खूबी ये है कि अगर हम प्राणा को मैनिपुलेट, कंट्रोल, मैनेज कर सकते हैं प्रॉपरली, तो पहला असर जो है हमें देखने को मिलेगा मन के ऊपर। मतलब जो इंटीग्रेशन है ये वन वे नहीं है, ये दोनों तरफ है। मतलब जैसे समझ लीजिए कि अगर हमने गलत खाना खाया तो हमारे प्राण पे असर पड़ेगा, हमारा प्राण जो है वो ठीक नहीं चलेगा, शरीर खराब हो जाएगा। आपने ये भी सुना होगा कि खाने का असर हमारे मन के ऊपर पड़ता है। कुछ हम खाने के लिए भी हम बोलते हैं कि ये राजसिक खाना है, ये तामसिक खाना है, ये सात्विक खाना है। और जो खाना जो है खाया तो हमने अन्न माया कोश में डाला, बट उससे हमारा प्राण माया कोश अफेक्ट हुआ, उससे हमारा मनोमाया कोश अफेक्ट हुआ, उससे हमारा विज्ञान माया बुद्धि वाला कोश अफेक्ट हुआ, और उससे हमारा जाके चित्त के अंदर जो वासना है वो भी अफेक्ट हुई। तो जो इंटीग्रेशन है ये बोथ वेज है, it works both ways, right? So it can go from out to in as well as come from inside to outside. तो जो ये प्राणा है इसका जो इमीडिएट जो आपको देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा, जैसे मैं योगा की बात कर रहा था कि वो स्वामी रामदेव योगा सिखाते हैं और बोलते हैं कि भाई ये वाला योगा करोगे ये वाली बीमारी ठीक हो जाएगी। तो एक तो वो प्राण का कंट्रोल है, बट वो बॉडी पे असर करता है। तो योगा से जो हमारे प्राण का जो फ्लो है शरीर के अंदर, उसको हम मैनेज कर सकते हैं। अभी जैसे हमने प्राणायाम की बात कर रहे हैं, तो जैसे हम उज्जयी की बात कर रहे थे लास्ट टाइम, तो जब उज्जयी करते हैं तो उससे प्राण कंट्रोल होते हैं, जब वो प्राण कंट्रोल होते हैं तो उससे बॉडी कंट्रोल हो जाती है। तो कुछ प्राणायाम ऐसे हैं जिनको करने से हमारा
शरीर जो है वो ठीक होता है। बट क्योंकि ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है तो वो प्राणायाम ऐसे भी हैं जिससे हमारा मन और हमारी बुद्धि भी अफेक्ट होती है, कंट्रोल होती है। उसके अंदर जैसे अनुलोम विलोम जो अभी हम बात करेंगे या कर रहे हैं, तो अनुलोम विलोम उसमें से एक है। मैं उसके बारे में और थोड़ी सी बताऊंगा आपको अनुलोम विलोम के। तो वो बोलते हैं कि जो ये शक्ति है, जो ये एनर्जी है, जो प्राण शक्ति है, में बंद हो जाएगा, ये फिर से शुरू करेंगे। कुंडली की तरह से, कुंडलिनी बोलते, कुंडली कुंडलिनी हमारे शरीर में वो एक डॉर्मेंट तरीके से होती है, और जब वो राइज करती है, वो जो शक्ति जब अपनी राइज करती है, उसके राइज करने से हमको ऑफ अवेयरनेस एंड सेल्फ रियलाइजेशन पॉसिबल। तो अगेन लिटिल बिट मोर ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑन दिस। जो हमारा शरीर है उसके अंदर ये प्राण जो है उसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट 7 हमारे पॉइंट जो है वो मेन माने जाते हैं। उनका मेन चक्र बोलते हैं, इंग्लिश में चक्रा और हिंदी में चक्र। तो जो 7 पॉइंट्स हैं हमारे, यहाँ पर हमारा प्राणा जो है वो एक स्ट्रॉन्ग तरीके से एक सर्कुलर मोशन के अंदर एक्टिव रहता है। तो ये जो 7 चक्र है, मैं आपको उसका ब्रीफली बता देता हूँ, क्योंकि एक एक चक्रा के ऊपर भी आधा घंटा लग सकता है। और जरा एग्जांपल उसमें दो, इनसाइड आउट कैसे कनेक्शन होगा? हाँ जी, लोअर लेयर टू द हायर लेयर, how do you influence the higher layer from the lower, like प्राणमय कोशा से? हाँ, तो ये जो हमारा जो डिस्कशन है ना, उसी तरफ जा रहा है। ठीक है, कि हाउ वी यूज दिस प्राणा टू अफेक्ट द हायर लेयर, मतलब इनर लेयर। तो 7 चक्रा हमारे शरीर में उन्होंने डिफाइन किए कि 7 चक्र होते हैं। शरीर को कहना चाहिए शरीर के साथ रिलेटेड है, बट वो हमारे एनर्जी सिस्टम के अंदर है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप शरीर को काटेंगे तो चक्रा नजर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये जो चक्रस हैं, वो चक्र 7 चक्र मैं आपको क्विकली बता देता हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो उनके नाम इंग्लिश में अभी कर दिए गए हैं, तो मैं थोड़ा इंग्लिश में बोल देता हूँ, आप हिंदी में भी बता देता हूँ साथ में। तो पहला चक्र जो हो, सबसे आउटर जो चक्र माना जाता है, उसको बोलते हैं मूल धारा चक्र, रूट चक्र। रूट चक्र जो है उसकी पोजीशन हमारी जो हमारी टेल बोन होती है उसके पास होती है। रूट चक्र जो है वो हमारा सर्वाइवल का इंस्टिंक्ट होता है। है जी? So all survival related issues are governed by the energy of the root chakra. प्राणा वहां से काम कर रहा है ना। तो नेक्स्ट हम डीप कर दीजिए ना, स्वादिष्ठाना is a chakra of passion. It's a chakra of replication, reproduction. It is also a chakra of trust. It is a chakra of self-confidence. It has many effects. It's a very important chakra. इस चक्र का नाम क्या बताया दूसरे का? स्वादिष्ठाना बोलते हैं उसको। स्वादिष्ठाना, सेक्रल चक्र बोलते हैं। ये चक्र का जो मेन सिग्निफिकेंस है वो है हमारा पैशन। थर्ड चक्र इज योर चक्र ऑफ सोलर प्लेक्सस, मणिपुरा बोलते हैं।
The solar plexus chakra is the energy of your identity. So the ego actually functions through the solar plexus chakra. Fourth chakra is the heart chakra, Anahata. This is the chakra of compassion. This is where the universal love projects through. This is where the layer of connection is, the energy of connection. Fifth chakra is the throat chakra, Vishuddhi. The main significance is expression. Expression of the truth. ये चक्रा जब बहुत अच्छा होता है तो आपने देखा होगा कि जो बात हम बोलते हैं वो सच हो जाती है. इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग चक्रा. सरस्वती बैठी होती है इस चक्रा में. सिक्स्थ चक्रा इज द थर्ड आई, जो शिव की थर्ड आई है. थर्ड आई चक्रा इज द चक्रा ऑफ इंट्यूशन. This is where in our Shastras your knowledge of the universe is expressed. Third eye, opening of a third eye destroys ignorance. The seventh chakra is the crown chakra, Sahasrara bolte hain usko. That is the chakra of connection with the divine. That chakra connects us with the divinity. ठीक है. अब ये 7 चक्रा हैं. तो लाइक आई सेड, मतलब ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, बट आई जस्ट वांट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ हाउ दिस इज फंक्शनिंग. अब ये 7 चक्रा जो हैं, दे आर फंक्शनिंग, दे आर रोटेटिंग एनर्जी है वो, इसलिए उसको चक्रा बोलते हैं. दे आर रोटेटिंग ऑन ए पर्टिकुलर नाड़ी, मेरिडियन के ऊपर रोटेट करते हैं वो. उस नाड़ी को हम बोलते हैं सुषुम्ना. ये नाड़ी जो है, अब ये क्राउन चक्रा से लेकर रूट चक्रा तक सबको कनेक्ट करती है. और रूट चक्रा के ऊपर, यानी मूल धारा जो पहला चक्रा था, वहां पर शक्ति, जो जिसको हम कहना चाहिए कि पूरी यूनिवर्सल शक्ति, जो शक्ति की जो वो है, कुंडली उसको बोलते हैं, कुंडलिनी, वो वहां पर रूट चक्र के ऊपर गवर्नमेंट पोजीशन में होती है. तो कुछ प्राणायामा की टेक्निक से वो कुंडलिनी, उसको कुंडलिनी इसलिए बोलते हैं जैसे एक स्नेक होता है ना, उसको कुंडली डाल के बैठा हो, तो उस तरह से बैठा हुआ है. तो वो जब जो स्नेक होता है वो बैठा हुआ है, तो अगर हम कुछ प्राणायाम कुछ इस तरह से होते हैं कि उससे वो उठ जाता है, और उठ के वो खुल के ऊपर जाना शुरू होता है. जैसे शक्ति है, बेसिकली शक्ति इस तरह से ऊपर उठती है. और जब वो शक्ति उठकर क्राउन चक्रा, यानी जो हमारा सहस्रार चक्रा, उससे बाहर निकल जाती है, तो दैट गिव्स अस द एक्सपीरियंस और अनुभव ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन. क्योंकि उस वक्त जो है हमारा जो एक्सपेंशन है, जो हमारी एनर्जी का, जो हमारी सोल का एक्सपेंशन है, वो वन हो जाता है विद द यूनिवर्स, यूनिवर्सल एनर्जी. प्रभात जी, if that answers some of your point here. Yep. So when these greats जो भी थे वो लोग, scholars and rishis and whatever, when they decided कि हाँ, this is a whole system, so they started getting into this deeper and deeper and deeper and deeper. So they realized कि this can be done
if we integrate the पंच कोशा का ज्ञान with the pranayama ka gyan, and if we integrate these two knowledges, we can come out with a complete category of knowledge, which will also become a fourth path for self-realization. And that then later on became Raj Yoga, Hat Yoga, this yoga, that yoga, वो सारे